Right. So shall we start? Okay, good. Fine. So welcome to this session. In this session, we will talk about input bias current, which is one of the uh, imperfection in the operational amplifier. We talked about first imperfection in the op amp, that is input offset voltage. And today we'll talk about the input bias current, which is one more imperfection in the op amp. There are few more imperfections, but we will understand them step by step, one by one. In the real op amp, all the imperfections are available at the same time. It means when you purchase an operational amplifier, then it will have imperfection like input offset voltage and also input bias current, also limited bandwidth, and so on. But when we study these imperfections, we study them one by one. Consider that at a time only one imperfection is present, so that it becomes easier for us to understand. Everybody getting this point? Okay, good. So let us now rub out this input offset voltage, because that is already studied. We will go to input bias current. Now we will have our usual strategy of understanding what is input bias current, then why does it come into picture, then how do we measure it, what is the order of that, and how to nullify its effect. Like if this is imperfection, how do we actually reduce its effect on the output, because even if the imperfection is there, we want to go towards near ideal performance. So we have to live with the imperfection because we are living in the practical world, but at the same time we want to reduce its effect on the output. Everybody agrees with this? How to nullify or reduce its effect. Okay, so these are the points we wish to study. Sounds okay? Sequence? The sequence in which we will go, is this okay? Hello? Fine. So let us work with the what is this input bias current. To understand what is this input bias current, what I will do is I will draw in op amp symbol. This is the symbol of an op amp. Inverting terminal, non-inverting terminal, output VCC and VEE. This is. Now what we will do is we will go inside the op amp and we will draw the first stage of the op amp, which is the differential transistor amplifier. We are drawing a very simple circuit. The actual circuit in the real op amp will be slightly complicated, but we will draw simple circuit so as to have appropriate understanding in a simple way. Okay, so the whole circuit we are not drawing. Fine. So this is inverting terminal, non-inverting terminal, and the output is taken from these terminals and it will go ahead, and through some circuits it will go to the output. So these additional circuits we don't know right now. Okay, everybody understood this much? Hello? Okay, so be responsive so that we can save our time. Fine. Now when we agree that there are the bipolar junction transistors in this particular circuit, the base current
will be surely there, because without base current there will not be any collector current. So if there is base current is there, it will flow like this. Everybody agrees with this? Yes or no? Right. Now this base current is expected to be 0 ideally. Everybody says yes. It should be 0 ideally, because input impedance is to be infinite for ideal op amp. Okay. So this current, which is the input current of the op amp, which is ideally 0, is actually this current, which ideally it is 0, but practically it will be finite or small value. Okay. How small? Let us understand by going to Google. Shall we do that? Okay, great. So everybody will look at what I am doing. I am just downloading a data sheet. Otherwise I can actually search for data sheet 741, which I have locally. So let me adjust the screen, and also want to see your comments. हाँ, ये ठीक रहेगा. Okay, now we want to check for the input bias current, where it is. Okay, so first of all we are going through this. So electrical characteristics of this IC, which is mentioned by the manufacturer. Okay, so one of the electrical characteristics is input offset voltage, which we have seen already. There is also input bias current, which we wish to understand now. There is also offset current, but we will take it after some time. So input bias current, this is one. Then at different temperatures they have measured it, and the typical value of this bias current is, how much is value? 80 nanoamperes. At higher temperature it may go to 1.5 microamperes, but it is 80 nanoamperes. Okay. So I hope you understood the typical value and unit of that. Yes or no? Right. And this is for 741 op amp. Okay. Fine. Now we will go through the internal circuit of 741 just for sake of understanding. There is no need that we should understand the complete internal circuit. That is not necessary. What we should understand is whatever I have drawn earlier, that is this. This is there in real amplifier. So this is Q1, Q2, and non-inverting input, inverting input, and because there is a base emitter junction, and unless base emitter current flows, the circuit will not work, and therefore base current must flow, and the base current is coming from inverting input as well as non-inverting input, which are shown here. Okay, so this is the same diagram as this. Hope that you understand this much. Okay, there is no need to understand this. We will understand this as and when required. But अभी के लिए इतना input stage is enough. Okay. Everybody getting this point? Yes or no?
Great. Fine. So what did we do is we first of all understand what we wish to do. We wish to understand input bias current. Then we decided the flow, what, why, how, and how to nullify. Then we did has drawn circuit, symbol of the op amp, and then internal circuit. And then we understood that if this is a BJT, bipolar junction transistor, it must have base current, and that base current will flow like this. Okay, and its practical value will be small. We understood how much small it will be by going through the data sheet. Fine. So I'll write down this value somewhere here. For 741, it is typically 80 nanoamperes. It is very small. Fine. I'll check whether I have one more op amp, LM356. Otherwise, I'll just go through Google. And LM356 datasheet PDF. Okay, I hope you are able to see the data sheet. I'm just zooming it properly so that you are able to see that. And going to the input offset current value, which is shown here as low input offset current 3 picoampere. कितना है आपने देखा? Did you see that? I want to see your chat. Yes, you saw that. Okay, so now this is 3 picoamperes. So we write down that here. You also please note down कि 741 में ये इतना है, और for LM356 this is one more operational amplifier. Remember, it's again an operational amplifier. It is how much it was, how much Google पे जाएंगे. It is 3 picoamperes. So what we understand, why it is so small, that's a different story. Okay, but as far as operational amplifier, two operational amplifiers are concerned, which is close to ideal op amp, आप बताइए, which is close to ideal op amp? Yes, LM356 is close to ideal op amp. ठीक है, you are very much right, but it will be costly because they need to do something extra for designing those circuits. Okay, so what we understand out of this is that there are many varieties of operational amplifiers available in market, and based on the requirement we can choose the right op amp for the right application. Okay, for example, suppose I want to use a sensor. Suppose I have a sensor, ये sensor है मेरा, and some sensor, this is suppose glass electrode, and there are some wires coming out of this, but the amount of current this fellow can provide is hardly 1 nanoampere, this sensor. So it is our duty to connect something which will not demand any current. So if I use mu A741 to process this particular sensor, then what will happen? Suppose if I use mu A741 in which there are two transistors, then these two transistors will demand some current.
How much current? They will demand 18 nanoamperes. What the sensor will say? I can supply 1 nanoampere. And if the op-amp says 18 nanoamperes, this fellow will be sad. Are you getting the point? So it is our duty to make sure or read the requirements of the sensor. Sensor क्या चाहता है? Sensor को कितना current दे सकता है sensor? And the next circuit connected to the sensor should require less current than what sensor can provide. Okay, so accordingly, accordingly you can choose the right op-amp. So there are varieties of op-amps available. Okay, so based on the need, you can choose the op-amp. There are some op-amps which have very high bandwidth. There are some op-amps which have very high gain. There are some op-amps which they have very high input impedance like LF356. And there are some general purpose op-amps like 741 which have moderate values of all these things, but their cost is very, very small. So wherever the cost matters, people try to use LM741 or similar op-amp. Everybody understood this? So what we understand is that 741 is not the only op-amp in the world. सबको पता चल गया? आपको ऐसा लगेगा ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? But it is the experience that the students, when they go through books mention only 741 because this is popular, easily available, cheap, and therefore students come under the impression that 741 is the only op-amp in the world. क्योंकि सभी जगह वही देखते हैं. They don't come across any other op-amp at all. That is the problem with some other institutes, some other colleges. But in our college, what we do, we expose the students to whatever is available in industry. Then our students become better and better. अच्छा है ना? Good, very good. So it is always good to know what is there in industry, what is there in real life, and accordingly we should be able to make our decisions so as to design the circuit which is suitable for the application. ठीक है? हाँ. Fine. I hope you understood what is bias current. Bias current is actually the base current of the first two transistors which form the differential amplifier in the op-amp. So can we write down? Please write down. Bias current is the actual base current of the first stage, which is a differential amplifier, transistor differential amplifier in the operational amplifier. We also understood why is it coming into picture. Because the BJTs, bipolar junction transistors, they are current driven devices. So without base current, these transistors will not work. For example, suppose Prachi is there. Suppose this is Prachi. This is Prachi. Looking good? Prachi? Great. And she is smiling. Right. So she said that I know that bias current वगैरह सब है, but I don't want to give bias current. I will not give bias current because I know that ideally it should be 0. So I will not provide any bias current. ठीक है? If it is so, what these transistors will see? Suppose ये transistor है, ये क्या बोलेगा? अगर मुझे बेस करंट नहीं दोगे तो मैं काम नहीं करूँगा. So simple. Are you getting the point?
Prachi? All of you? Other people are also understanding? So what Prachi should do, I repeat, what Prachi should do, Prachi should help the circuit, or Prachi should fulfill, I repeat, Prachi should fulfill the requirements of the circuit, and the circuit will fulfill the requirements of Prachi. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ. तो somehow we have to make sure that the base current flows. अगर बेस करंट फ्लो नहीं होता है तो सर्किट काम नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अभी प्राची के बजाय और कोई लेते हैं, आरती. यस, नाउ आरती इज देयर. ओके, नॉट वेरी गुड पिक्चर, बट आप समझ लो. थोड़ा अलग, राइट. सो व्हाट प्राची सेज इज दैट this is my circuit, and this is my circuit, and I will keep this open. ठीक है, then this current will not flow, and then this fellow will be unhappy because it is not getting any base current. Are you understanding? So the first stage in the op amp will not work properly. अगर फर्स्ट स्टेज वर्क नहीं होता तो सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज कुछ भी नहीं वर्क होगा. देन द आउटपुट विल बी रॉन्ग. समझ में आ रहा है आपको सबको? एवरीबडी गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, ग्रेट. सो वी अंडरस्टैंड दैट द डिजाइनर ऑफ एनालॉग सर्किट or op amp circuit should make sure that the bias current flows somehow. ठीक है, बायस करंट फ्लो नहीं होता तो सर्किट सही ढंग से काम नहीं करता. ठीक है, राइट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वी अंडरस्टूड व्हाट द बायस करंट इज. व्हाई डज इट कम इनटू पिक्चर? वी अंडरस्टूड. देन वी अंडरस्टूड हाउ डू वी मेजर इट. You may ask, we just saw the data sheet, वहाँ सब लिखा है ऑलरेडी, तो मेजर क्यों करें? है ना, ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा. पहले दिया है, सब लोग देते ही है, डेटा शीट में लिखती है, तो क्यों मेजर करें? When we actually start measuring the circuit, we understand how the measurement is done and which are the components which are the culprits. तो उस कंपोनेंट पे हम ध्यान प्रॉपरली दे सकते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा. सो टू अंडरस्टैंड दैट इन अ बेटर वे, आई विल ड्रॉ ए वेरी सिंपल सर्किट. ओके, इमीडिएटली विल गो टू द सिमुलेशन एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल अंडरस्टैंड थ्रू वेरी सिंपल सर्किट्स. ठीक है, तो थोड़ा और ध्यान दो. अभी कितना टाइम हो गया? अभी आधा घंटा तो हो गया है ना, हाफ एन आवर इज ओवर. सो देर में भी सम कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होता है, बट थोड़ा और कॉन्सेंट्रेशन करेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट. तो हम एक सर्किट ले लेंगे, एंड किसको अभी ले सकते? अभी निनाद को लेते. निनाद बहुत देर से आया नहीं. तो निनाद ने क्या किया कि ये सर्किट ऐसा बनाया. निनाद ने ये सर्किट ऐसा बनाया. अदरवाइज आई विल मेक इट स्लाइटली डिफरेंट. ठीक है, निनाद बोला कि मैं इसको ग्राउंड करता हूँ. बोला कि मैं इसको ग्राउंड करता हूँ और VCC ग्राउंड, VCC और VEE देता हूँ. तो ये सर्किट उसने किया, और ही इज़ थिंकिंग वेदर द बायस करंट इज फ्लोइंग और नॉट.
उसने रियल ऑप एम्प ले लिया 741 एंड ही वांट्स टू नो वेदर दिस करंट फ्लोज और नॉट। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, बेस करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, बायस करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? इट इज़ जस्ट गेस, वी मे नॉट नो दैट। आपको क्या लगता है? बाकी लोग आंसर करें, देर इज़ नो रूल कि कोई थोड़े लोग ही आंसर करें। एनीबॉडी कैन आंसर, दिस इज़ द पावर ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग। क्लास में ऐसा नहीं होता है, बट कॉन्फ्रेंसिंग में कोई भी आंसर दे सकता है। सो मेक यूज ऑफ दैट। पृथ्वी वोंट फ्लो, ओके। साक्षी सेज वोंट फ्लो, दशरथ सेज फ्लो, ओंकार बोल रहा है फ्लो होता है, ओके ओके। ऋतुजा बोलती है कि यस। आई थिंक डायरेक्ट एडमिटेड वाले यस बोल रहे हैं। दत्ता पूजा भी बोल रही है कि फ्लोज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी क्या करते हैं कि अपना जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सही करने के लिए इसके अंदर जाते हैं फिर से। ओके, इसके अंदर जाने के लिए क्या करते हैं कि अपना जो पहले वाला सर्किट है ना, वहाँ जाते हैं, यहाँ। ठीक है, और इसी सर्किट में, इन द सेम सर्किट, वी विल रब आउट सम पार्ट, अदरवाइज आई विल ड्रॉ, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट। कि हम क्या करते हैं कि इसको बड़ा सर्किट बनाते हैं, इसको बड़ा ओपन, ये बड़ा वाला ओपन, देन द ट्रांजिस्टर्स विल बी देयर। ये ट्रांजिस्टर्स कलेक्टर पार्ट VCC को जाता है, एमिटर सर्किट somehow it goes to VEE। ठीक है, और ये आता है इधर। ओके, सो this particular base current, whether it flows or not, if the input is grounded, ये हमारा क्वेश्चन है। इनपुट इज ग्राउंडेड, तो बेस करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, दिस इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट दिस इज एट जीरो पोटेंशियल, एवरीबडी नोज दैट दिस इज एट जीरो पोटेंशियल, लेकिन दिस VEE एट -12 है ना, सबको पता चल रहा है। ये VEE कितने का रहता है? -12 टिपिकली रहता है ना, येस और नो? यस। तो जीरो से माइनस तक करंट जा सकता है क्या, अगर पाथ अवेलेबल है तो? देखो यहाँ करंट का पाथ है, यहाँ से करंट का पाथ अवेलेबल है, तो ज़ीरो से माइनस तक करंट जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है ना। तो ये सब हमने पहले दिखाया नहीं था, ये इतना ही दिखाया था, इसलिए आपको लगा कि नहीं है, ये करंट जा नहीं सकता। बट एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से करंट जाता है, यहाँ से अंदर सम सर्किट्स में जाके ये नेगेटिव में जाता है। ओके, सम सर्किट यानी ये सर्किट, तो यहाँ से ये ऐसा जाएगा, बेस के अंदर जाएगा, बेस से एमीटर जाएगा, और एमीटर्स में सम सर्किट से VEE तक जाए। ओके, राइट। इफ़ यू लुक एट दी 741 सर्किट, तो कैसे जा सकता है? आई विल एक्चुअली एनेबल वन मोर सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? डैजल। ठीक है, तो ये करंट यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से इधर जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको इधर निगेटिव दिखाई देता है, -VEE, B माइनस। ओके, दिखाई दिया आपको इधर का -VEE? यस। सो देखिए करंट कहाँ से जाएगा, तो मैं इसको
रेड कलर में दिखाता हूँ आपको, रेड कलर रेड कलर रेड कलर। ये बेस करंट गया, इधर से गया, एमीटर में गया, फिर कलेक्टर से बाहर आ गया, यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया, इधर आ गया, यहाँ से इधर जाके ये इधर तक गया। Did you understand this? So even if the input is at zero potential, then only base current, bias current will flow. Yes or no? Okay, good. So very good, very good. You are answering it correctly. तो अभी हम सिमुलेशन में जाते हैं, ठीक है। सो अगर ये सर्किट किसी ने निकाला और पूछा कि बायस करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, क्या आपका आंसर होना चाहिए कि यस। अगर यहाँ VEE दिया है तो, अगर किसी ने गड़बड़ किया, चीटिंग किया और यहाँ आपको बताया कि ये मैं ग्राउंड करने वाला हूँ, तो ये करंट नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज ज़ीरो, दिस इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, तो आधा बात कभी समझना नहीं, पूरा बात समझना। ओके, करंट जाता है ये सही बात है, बट ओनली व्हेन देयर इज अ लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड टू द ऑप एम्प। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये पूरी बात समझ लो। व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स देयर इज नो नीड टू मगअप हमको करना ही नहीं। हाँ, इवन इन एग्जाम्स मेनी थिंग्स विल बी गिवन टू यू। अभी तो MCQ है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बट यूजुअली व्हाट आई डू इज आई गिव ऑल द डेटा। देयर इज नो पॉइंट इन रिमेंबरिंग सो मेनी थिंग्स। ओके, वी विल ओनली अप्लाई द नॉलेज दैट वी आर अक्वायरिंग। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सिमुलेशन पे जाते हैं। चलिए सिमुलेशन पे। अभी टाइम कितना हो गया? 12:57। ओके, तो अभी कितना मिनट है हमको? 5 मिनट, 5 मिनट्स, 5-10 मिनट्स, कितना टाइम तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं? 15 मिनट। ओके, पृथ्वी से 15 मिनट। ओके फाइन, नो इशू। सो यू विश टू यूटिलाइज फुल टाइम, उसके बाद शायद लंच ब्रेक है, बट विल ट्राई टू फिनिश अर्लियर। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं सिमुलेशन पे और ये सर्किट देखते हैं कि क्या होता है इसमें। सो आई हैव डन मेनी डिफरेंट सर्किट्स, 1 2 3 4 5। उसको मैंने एक ग्राफिकल सिंबल भी दिया है। हाँ, ये यहाँ से लिया है मैंने, यहाँ से सर्कल लिया है, यहाँ से मैंने नंबर लिया है, वो ओवरलैप किया है, फॉन्ट चेंज किया है, वो सब किया है। अच्छा दिखाई देता है ना? Okay, great. So we'll go to the first circuit and check कि ये क्या करता है। ठीक है, अभी पहले वाला सर्किट क्या है? इट इज़ ओनली सिंपल सर्किट, उसको कोई फीडबैक नहीं, कुछ भी नहीं। एंड आई हैव एडेड द करंट प्रोब, मैंने एमीटर डाला नहीं। वाई आई डिड नॉट यूज एमीटर? तो अगर मैं एमीटर इधर डालता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ DC एमीटर लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं यहाँ डालता हूँ। इफ़ यू लुक एट दिस, देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है ना, 1 डेसिमल प्लेस है इधर, तो आपको इतना एक्यूरेट रिजल्ट्स उसमें नहीं दिखाई देगा। एंड वी नो दैट द करंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जैसे कि हमने देखा नैनो एम्पियर पे है, माइक्रो एम्पियर है, या पिको एम्पियर भी है। सो वी वांट वेरी हाई रेजोल्यूशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अभी हम करंट प्रोब लगाया इधर। कैसे लगाया? आई थिंक यू नो हाउ टू ऐड करंट प्रोब। अगर याद नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ, ये करंट प्रोब है, यहाँ जाके उसको करंट किया और आप इधर ड्रॉप करो जस्ट। ठीक है, और उसको डबल क्लिक करके उसका नेम चेंज कर दो। आई हैव यूज्ड I, B and N और P। यू कैन यूज प्लस और माइनस, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और अंडू करता हूँ।
ठीक है, राइट। तो अभी हम इसको सिमुलेट करते हैं। अभी ये पढ़ो कितना है, I is equal to 8.88 so many things and then e to the power minus 8। तो ये कितना हो गया, ये 88 नैनो एम्पेयर्स हो गया। और आई बी नॉन इन्वर्टिंग 70.4 नैनो एम्पेयर हो गया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, क्या क्या पता चलता है, आप बताइए, क्या पता चल गया आपको। करंट फ्लोज इवन इफ इनपुट इज जीरो, फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो मैं लिख लेता हूँ आई बी फ्लोज इवन इफ इनपुट इज जीरो। ऑफ कोर्स VEE नीड्स टू बी देयर, वो ब्रैकेट में, नहीं तो वो नहीं फ्लो का। करंट फ्लो इफ इनपुट इज जीरो। और एक बात आपको समझ में आ रही है, इट्स वैल्यू इज वेरी लो। कितने नैनो एम्पियर में है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर। वो इतना छोटा करंट वो कैसे, हाउ डू पीपल डिजाइन सच सर्किट्स। हाँ, IN इज ग्रेटर देन IP। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन किसने किया, दशरथ ने किया। IN इज ग्रेटर देन IP, ये ऑब्जर्वेशन है। बट विल दिस बी ऑलवेज ट्रू, ये क्यों आता है, इधर का एक ट्रांजिस्टर है और इधर का एक ट्रांजिस्टर है ना, किसका गेन ज़्यादा हो सकता है, किसका गेन थोड़ा कम हो सकता है, पता नहीं। यानी कि ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना दशरथ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना, ये वाला। हाँ, तो क्या लिखना चाहिए मुझे इधर, मुझे लिखना चाहिए, ये कट करके ऐसा लिखना चाहिए, वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये समझ में आ रहा है क्या आपको, यस और नो। ओके ग्रेट। तो अभी क्या करेंगे, हम दूसरे सर्किट में जाएंगे। ये पहले वाला सर्किट हमारा हो गया, ये हमने समझा कि करंट प्रोब क्यों लगाया, कहाँ लगाया, और वो क्या दिखाता है, कितना करंट दिखाता है। ठीक है, बहुत छोटा करंट फ्लो होता है एंड it is different in different input terminals and it is going in, you can understand that it is going inside. Why it is going inside, why it is going inside, because the transistors are NPN वाले, ये NPN वाले ट्रांजिस्टर्स है, दिखाई दे रहा है क्या आपको, NPN वाले ट्रांजिस्टर्स। अगर NPN ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए तो करंट तो अंदर ही जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा उल्टा, यस और नो। हाँ, तो समझो कि एक सिचुएशन लेते, विल टेक अ सिचुएशन, और ये सिचुएशन में किसी और को भी डाल देते। कौन तैयार है आने के लिए हमारे सिचुएशन में, अमोल आ रहा है, अमोल, अमोल तो पहले आया था, अमोल, राइट, ओके, यस, अमोल इज देयर, राइट। तो अमोल क्या करे, अमोल को किसी ने पूछा कि ये ट्रांजिस्टर ऑप एम्प ले लो, और ये ऑप एम्प है, और then they asked whether this current will flow or not,
अमोल ने बोला यस, सर ने हमको पढ़ाया था यस। तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर का फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज एनपीएन का है या पीएनपी का है, ये पूछा। तो अमोल बोला कि पता नहीं। तो उसने क्या बोलना चाहिए, व्हाट ही शुड सी, एनपीएन बोलना चाहिए। अमोल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, है ना। तो आप बोलोगे कि नॉर्मली एनपीएन ही होता है, पीएनपी कहाँ होता है क्या? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि और एक ऑप एम्प ले लेंगे, LM324। ठीक है, उसका डेटा शीट देखते हैं। ये क्या हो गया, कौन सा, आप नोट कीजिए, एवरीबडी विल राइट डाउन LM324। इससे क्या हो रहा है कि हमको अलग अलग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नंबर्स समझ में आ रहा है थोड़े थोड़े, है ना। 741 तो पता हो गया, OP07 का थोड़ा थोड़ा पता चल गया, हाँ। LF356 एक बार देख लिया, अभी LM324 याद तो नहीं रहेगा, बट स्लोली इट विल हैपन। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें आपको सर्किट दिखा रहा हूँ, और इन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इनपुट नॉन इन्वर्टिंग, ये आपको पता चल गया। तो आप देखिए ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी है या एनपीएन है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना। यानी कि आपका अभी क्या कंक्लूजन हो गया, नाउ द कंक्लूजन इज दैट ऑप एम्प can have either NPN or PNP transistors in their first stage। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। एनपीएन हो तो करंट अंदर जाता है बाहर आता है, इन और आउट, आप बताइए। करंट इन जाता है, और पीएनपी हो तो आउट आता है। तो मैं जो गलत है वो उसको काटता हूँ। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मच? ओके ग्रेट। तो विल गो टू सिमुलेशन, अभी 2 मिनट में पूरा करते हैं दूसरा सिमुलेशन। ठीक है, एंड देन विल टेक अ पॉज। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट मी। तो अभी दूसरा सर्किट पे जाना है। शायद मैं तीसरे सर्किट को जाऊं। अरे क्यों एम्पलीफाई नहीं हो रहा है? हाँ ओके। आई थिंक विल गो टू सेकेंड सर्किट, दैट इज ऑलवेज गुड। ये कौन सा सर्किट है आप बताइए, विच इज दिस सर्किट? ये कौन सा सर्किट है, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट कौन से टर्मिनल पे दिया है? नॉन इन्वर्टिंग, सिद्धि ने करेक्ट बोला। Other people also may be knowing, just they did not understand, did not answer, but what Siddhi says is correct. Everybody will remember that this is non-inverting amplifier. ठीक है, तो हम इसको 2.5 वोल्ट दिया और अभी उसको ज़ीरो करते हैं, यानी कि ज़ीरो इनपुट दिया। ठीक है, अदरवाइज विल टेक इट नॉर्मल, 2.5 ही रख देते, एंड देन विल सिमुलेट। तो 2.5 दिया तो गेन कितना, 10K 10K, दैट इज 10K 10K, यानी कि दो गेन है, गेन इज 2, एंड देन द बायस करंट इज स्टिल फ्लोइंग, रिमेंबर
एम्पलीफायर है तो ऐसा नहीं कि बायस करंट नहीं फ्लो होगा. व्हेन यू यूज़ एम्पलीफायर इन एनी सर्किट, जैसे कि आरती ने नॉन इन्वर्टिंग सर्किट बनाया, सिद्धि ने इन्वर्टिंग सर्किट बनाया, दशरथ ने समिंग एम्पलीफायर बनाया, या और कोई है, निनाद ने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बनाया, तो हर एक सर्किट में बायस करंट फ्लो होगा, बिकॉज विदाउट बायस करंट द ऑप एम्प इटसेल्फ विल नॉट वर्क. ये समझ में आ रहा है क्या सबको? यस, गुड. सो दिस इज द पर्पस. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि थर्ड सर्किट पे आपको लेके जाता हूँ. एक्चुअली व्हेन वी गो टू द लेबोरेटरी, आप सब याद रखिएगा, व्हेन वी गो टू, अरे ये क्या हो रहा है, व्हेन वी गो टू लेबोरेटरी वी हैव लिमिटेड सर्किट्स. सर्किट्स लिमिटेड होते हैं ना लैब में, एक दो सर्किट्स रेडी होते हैं, लेकिन सिमुलेटर पे कितने होते हैं? ये क्या हो रहा है, आई डोंट, सिमुलेटर में कितने सर्किट्स हो सकते हैं? एनी नंबर ऑफ, है ना. सो दिस इज़ वेरी पावरफुल वे ऑफ लर्निंग. इनफैक्ट वी आर डूइंग मच बेटर देन व्हाट वी वुड हैव डन इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में तो रियल एक्सपीरियंस आएगा, दैट इज प्लस पॉइंट. बट वहाँ जो नहीं हो सकता है, बहुत सारे सर्किट्स हम स्टडी नहीं कर सकते उधर, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज रियल. तो सिमुलेटर में वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. So what I have done is I have added one resistor in the feedback, and then what I'll do is I will keep this resistance very small. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 10 ओम करता हूँ, 10 ohms, 10 ओम. ठीक है, इसको मैं 10 ओम करता हूँ. टू अंडरस्टैंड दिस, कितना टाइम हो गया, अभी तो 1:12 हो गए. सो थोड़ा पॉज ले ले, बिकॉज 1 घंटा बहुत होता है एक्चुअली. इतना देर तक कंसंट्रेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट दैट इज़ नॉट फॉर यू, है ना. एक ही कोर्स आपके लिए नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज भी है. इट इज़ ओके दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, विच इज़ गुड थिंग, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप इन माइंड द टाइम. तो अभी 1:12 हो गए, तो आई थिंक विल टेक अ पॉज. तो आप क्या करें कि जस्ट गो थ्रू बायस करंट टॉपिक एंड देन ट्राई टू रिकैप. ठीक है, कल फिर मिलेंगे 10:15 में. बट वॉज दिस सेशन यूजफुल टू ऑल? अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अच्छा था. राइट. इफ़ वी फॉलो द फंडामेंटल्स तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता. लेकिन अगर हम मगअप करने लगे, सिर्फ याद करने में रहे, तो गड़बड़ होता है ना. अगर कोई दिक्कत है हमको, कई बार ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है, बट द ओनली थिंग दैट इज़ पॉसिबल इन दैट सिचुएशन इज थोड़ा पेशेंस रखे. वो तो हमको ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है. यू हैव टू हैव lot of self motivation when we remotely learn. Whenever I also do courses online, then I also get fed up sometimes, क्योंकि बहुत सारे बाकी के भी काम होते. बट देन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, फिर से हमको हम खुद को बताना है कि नहीं, मुझे ये करना ही है. एंड देन आई विल आस्क समबडी कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है. बिकॉज इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट लॉजिक. वहाँ मैजिक का कोई स्थान नहीं है ना. उसका इफेक्ट मैजिकल होता है. एवरीबडी एग्रीज विद दिस. जैसे कि मोबाइल पे आप टच करते हो तो इट लुक्स लाइक अ मैजिक फॉर अ ले मैन, बट आपको पता है कि ये कैपेसिटिव सेंसर है वगैरह वगैरह. एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पॉज ले लें अभी. ओके, ग्रेट. तो विल टेक अ पॉज, विल मीट एट 3:30 practical batch, and next week we will do this experiment on bias current. ठीक है. Okay, so I think let us take a pause.
and have a nice day. I hope you understood this topic. Okay, thank you, Sakshi. Thank you, Sudhir. Thank you, Aarti, Hansraj, Amol, Samiksha. Very good. All of you are nice people, active people. So, bye.